اب میں خواہش کرتا ہوں جناب سید مجاہد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے. صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا سید سجاد علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب قبلہ اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہاں پہ جناب سید خلیل قادری ملتانی صاحب کے گھر میں جمع ہوئے ہیں ذکر غوث اعظم کرنے کے لیے، اور آج کا جلسہ 8واں جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ یہاں پہ منعقد ہے. ہماری جماعت کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت 41 سال سے اس جلسے اس پروگرام کا کنٹینیو 41 ایئرس سے کنٹینیو چلتے ہوئے آ رہا ہے. 12 ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جلسے منعقد ہوتے ہیں. اسی طرح ربیع الثانی میں فیضان حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور رجب کے بھی جلسے ہماری جماعت منعقد کرتی ہیں. اور اسی طرح محرم میں شہادت نا امام حسین علیہ السلام کے 10 جلسے منعقد ہوتے ہیں. اور ہر اتوار جامع مسجد افضل گنج میں ہماری جماعت کا اجتماع بھی ہر اتوار منعقد ہوا جاتا ہے، جہاں سے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنا بزرگوں کے بارے میں جو بے ادبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آج کی تاریخ میں معمولی ایک کپڑا بھی لینے جا رہے ہیں تو اس کو 4 دفعہ ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے سب جگہ دیکھ کے اس کو خریدتے ہیں. پر جب دین کا معاملہ آتا ہے، ہم کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت کر لیتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی برداشت کر لیتے ہیں. تو ہم کو ہمارے عقیدوں کو درست کرنا ہے. ہم کو عقیدے ہمارے کیسے درست ہوتے ہیں؟ ایسی مبارک محفلیں منعقد کرنے سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہم کو علم آتا ہے، صحیح سمجھ آتی ہے. تو ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے، کسی کی ٹوپی، کسی کی داڑھی، یا کوئی 4 قرآن کی آیتیں پڑھا کے بولا تو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. ہر کوئی قرآن اور حدیث بیان کرنے والا ہم کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ صحیح بول رہا ہے کر کے. ہم کو تحقیق کرنی چاہیے. جیسے میں بول رہا ہوں، اگر ہماری زندگی کے حساب سے ہم کو کچھ خریدنا ہے تو ہم 1 سے 4 جگہ دیکھ کے کہاں پہ بہتر ہوتا ہے، کہاں پہ اچھا ملتا ہے. جیسا نارملی ہم کچھ آفس میں کام کر رہے ہیں تو پہلے ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اسٹریٹجی بناتے ہیں، پھر بعد میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم کو دین کے معاملے میں بھی، اپنے علم کے معاملے میں بھی اس طریقے سے ہم کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اب آئیے چلیے، جتنے باطل فرقے ہیں پورے لوگ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کا کیا عقیدہ تھا. صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنے بہرالعلوم سرکار تک جتنے پاکیزہ لوگ بزرگان دین گزرے ہیں، سرکار کو نور مارتے تھے اور اولیاء اللہ کی شان میں کبھی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں تو خاموش اپنی جگہ چل رہا ہے، ہمارے کو تو کچھ پرابلم نہیں ہو رہا نا، ہمارے تک آیا تو دیکھیں گے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے. میں نے ایک جلسے میں حضرت سے ایک حدیث سنی تھی، وہ ایک بتاتا ہوں. سرکار ہمارے کیسا نور ہے، کیسا پیٹھ پیچھے کا علم رکھتے ہیں، کیسا دل کی بات جانتے ہیں، کیسا عرش کی بات جانتے ہیں. ایک دفعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے حضرت سے سنا ہے. حضرت کی
जो है चप्पलों की फैज में मेरे को ये मिला है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसी सही जमात में मिला है। कर सामने है बोल के तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, हमारे हज़रत तारीफ़ के काबिल ही है इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमको आज की तारीख में अमल पे जोर दिया जा रहा है। अमल 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 अमल। पहले तो सही ईमान दुरुस्त होना चाहिए, फिर आपका अमल कबूल होगा। ईमान है तो अमल है, अमल से ईमान नहीं है। ईमान है तो दाढ़ी है, दाढ़ी से ईमान नहीं है। अमल ईमान है तो नमाज है, नमाज से ईमान नहीं है। ये ईमान में आपको मजबूती कब मिलती है? जब आप इस तरीके के बुजुर्गान ये दीन के और ऐसे बुजुर्ग शख्सियत के, और जब ऐसे आप ऐसे जलसे मुनक़िद करेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। मैं आपको बोल रहा था तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान कर रहा था। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालदा मोहतरमा से इजाज़त लेके जा रही हैं, अम्मी हज़रत सरकार के पास जाऊंगा और उनके पीछे नमाज़ पढ़ के आऊँगा। तो देखिए सहाबा इकराम का कैसा अक़ीदा था, सहाबा इकराम का कैसा अक़ीदा था। उनके वालदा ने कहा, बेटा जब तुम सरकार के पास जाओ तो मेरे और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। अब ये सहाबा का तरीक़ा है और सहाबा का अक़ीदा है, सरकार हमको जो है बख्शिश करवा सकते हैं घर। अब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में तशरीफ़, असर की नमाज हुई, अदब मुस्तफ़ा में कुछ पूछा नहीं गया, खामोश बैठे। इस तरीके से मगरिब हो गई, ईशा भी हो गई, सरकार अपने हुज़्र मुबारक की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जा रहे हैं। रात का वक्त है, सरकार ने पूछा कौन? सरकार ने पीछे भी नहीं पलटा, सरकार ने पूछा कौन? फिर सरकार ने कहा हुज़ैफ़ा। फिर सरकार ने कहा अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी वालदा की मग़फ़िरत करे। सरकार ने पीठ पीछे का इल्म बताया। अभी ये जितने भी बातिल फिर गए कहते हैं सरकार बशर है, इल्म गैब नहीं जानते। सरकार पलटे भी नहीं, कह दिया कि हुज़ैफ़ा। और सरकार ने जब उनके वालदा से जो बात हुई, दिल की बात भी कह दिए, अल्लाह आपकी और आपकी वालदा की मग़फ़िरत करे। अभी ये तो हो गई, मेरी समझ में आ गया, ये तो हो गई दुनिया की बात। अब सरकार इससे आगे बढ़ के बता रहे हैं सरकार का इल्म क्या है, हमको किस तरीके से जानना चाहिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने कहा हुज़ैफ़ा, हम दोनों के दरमियान में एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, ये मेरी बारगाह में पहली बार आया है। तो सरकार की बारगाह में कौन सा फरिश्ता कब आ रहा है और कितने बार आ रहा है, सरकार ये भी इल्म रखते हैं। अब सरकार हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपको मालूम है ये फरिश्ता मेरी बारगाह में क्यों आया है? ये फरिश्ता मेरे बारगाह में अल्लाह से इजाज़त लेके आया है, अल्लाह तेरे महबूब की बारगाह में सलाम अर्ज़ करूँ। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने हमको ये अक़ीदे के से, इसलिए हम या नबी सलाम अलैहि सलाम पढ़ते हैं। अब इसके आगे नबूवत, हमारे नबी पहले और आखिरी नबी हैं, ये ईमान की बात है और सच्ची बात है, पक्की बात है। जितने भी पाकीज़ा लोग, जितने मुत्तक़ी परहेज़गार बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने कहा है हमारे नबी पहले और आखिरी नबी है। अब इसके आगे विलायत का सिलसिला जारी हुआ। जैसा नबियों में आला हमारे नबी है, पूरे वलियों में आला पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब इस्लाम की तबलीग चलेगी बुजुर्गान दीन से, तो ना हमको नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करना है, ना औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करना है। अब इसके आगे बुजुर्गान की शान और नबी की शान आप लोग हज़रत से और खतीब अहले सुन्नत से सुनेंगे। जब मेरी एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमने हज़रत से, ये भी हज़रत का फैज़ है, हमने सीखा है हज़रत से। गौसे पाक की बारगाह में एक औरत आई, हुजूर मेरा बच्चा नदी में गिर के इंतकाल हो गया। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है घर चले जाओ, आपका लड़का आ जाएगा। वो घर गई, लड़का नहीं है। अब देखिए वो पुराने और अक़ीदतमंद लोगों का तरीक़ा, वापस आए, ये नहीं कहा अगर एक बार बोले नहीं आया, वापस आए, हुजूर अभी तक लड़का मेरा नहीं आया। ठीक है दूसरी बार, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अब चले जाओ, आ जाएगा। इस तरह दूसरी बार भी जाने के बाद लड़का मौजूद नहीं है। फिर उनका ईमान देखिए, उनका अक़ीदा देखिए, औलिया अल्लाह से कैसी मोहब्बत रखते थे। अभी हम एक बार कुछ किसी बुजुर्ग की बारगाह में गए, काम नहीं कर रहे, अरे उन्होंने नजर करम नहीं कर रहे, एक दरगाह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हमारा अक़ीदा तो ऐसा हो गया, कुछ खट्टा डाले तो लाइट जैसा हो गया हमारा अक़ीदा। कुछ सब्र वो कुछ भी नहीं है, सब्र ही नहीं है। इस्लाम आपको सब्र सिखाता है, जितना भी
लोगों को मिला है, सब्र से मिला है। बेअदबी तो ऐसी हो रही है कि पूछे मत। सब्र का तो हमारे पास कुछ पैमाना ही नहीं है, जैसा कुछ भी बोलते ही हो जाना है, गोली खा रहे शिफा। पहले के लोग एक कुरान की आयत पढ़ के बुजुर्गाने दिन फूके तो शिफा हो जाती थी। आज के लोग पूरे कुरान पढ़ के फूके तो सर में दर्द भी कम नहीं होगा, जबान में वो तासीर नहीं रही। बुजुर्गों की शान में गुस्सा की, सरकार की शान में गुस्सा की करने के बाद आपकी जबान में कोई तासीर नहीं रहती मेरे भाई। तो इस चीज़ का हमको ख्याल करना चाहिए। मैं ये बोल रहा था, दूसरी बार भी गए नहीं आया, फिर तीसरी बार लौट कर आए, हुजूर अभी तक नहीं आया, जाइए आ जाएगा। जैसा ही तीसरी बार घर में गए तो लड़का मौजूद है। गौसे आजम सरकार ने फरमाया, या अल्लाह, 3 बार बोलना पड़ा तो अल्लाह ने फरमाया, जब आप पहली बार बोले तो लड़के के हम हड्डियां जमा कर रहे थे। जब दूसरी बार वो औरत आपकी बारगाह में आई तो उसमें रूह डाली गई और तीसरी बार घर को भिजाया गया। गौसे आजम दस्तगीर ने बोला, अल्लाह, ये काम तो एक बार में भी कर दे सकता है, तो एक बार में भी कर दे सकता है, 3 बार बोलने लगाया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब आगे आप जैसा बोले वैसा होगा। इसलिए हम बोलते हैं, अलमदद या गौसे आजम, हमारी ये परेशानी दूर कर दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको अच्छा कारोबार चला दीजिए, हमको सेहत दीजिए, हमको हमारा अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये मैं पहली बार ऐसा मौका मिला है आप लोगों के सामने बोलने के लिए। अगर मेरे कुछ अल्फाज गलत हुए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।